پاکستان بے شمار تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سرزمین ہے اور یہیں سے پرواں چڑھی دنیا کی قدیم تہذیب انڈس سیولائزیشن۔ یوں دنیا کے قدیم تاریخی مقامات موہنجودارو، ہڑاپا، ٹیکسلا اور مہر گڑھ کے آثار بھی اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں۔ سندھ کے قدیم شہر ٹھٹہ میں بے شمار تاریخی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ٹھٹہ کے تاریخی مقامات، مکلی کے قبرستان، شاہ جان مسجد اور بمبور کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات کینجھر جھیل اور ہالیجی جھیل کا بھی دورہ کرائیں، تاکہ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ان سیاحتی اور تاریخی مقامات پر آ کر اپنی شاندار ماضی کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ انڈس ڈیلٹا کے قریب قائم شہر ٹھٹہ، جو ماضی میں اسلامی تہذیب کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، 1400 سے 1800 صدی تک اس شہر کے سینے میں بادشاہوں کے جوش و جلال، روب و تاب، رحمدلی و سنگدلی اور انصاف کے بے شمار داستانیں مدفون ہیں۔ یوں اس شہر کو ماضی میں وہ مقام بھی حاصل رہا جب یہ شہر علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور شاندار تاریخی روایت کا بڑا مرکز رہا۔ اسلامی تہذیب اور تاریخ کے اس مرکز کی اہمیت کا اندازہ ٹھٹہ کے قریب پہاڑی پر قائم مکلی کے قبرستان میں موجود پرانے آثاروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو کراچی سے 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہیں۔ یہ شہر جہاں علم و ادب کے امین کے طور پر پرواں چڑھا، وہیں اس شہر کی فضاؤں میں سپہ سالاروں اور سپاہیوں کی بہادری اور شجاعت کے قصے اور دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی گونجتی تھی۔ 400 سال پر محیط شاندار تاریخی ادوار کے دوران یہ شہر عروج اور زوال کے اتار چڑھاؤ سے بھی گزرا، جس کی گواہی مکلی کے قبرستان کے آثاروں اور شاندار فن تعمیر کو دیکھ کر ملتی ہے۔ یوں تاریخی اہمیت کے باعث مکلی کے قبرستان کو سن 1981 میں یونیسکو کی جانب سے بین الاقوامی ورثہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مکلی کے قبرستان میں اور ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مکلی گریو یارڈ کے مینیجر سرفراز نواز صاحب سے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس تاریخی قبرستان کی کیا اہمیت ہے۔ سرفراز صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مکلی کا قبرستان ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور آپ اس سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ مکلی کا قبرستان، اس میں 4 مختلف ادوار کے ریمینس ہیں، آرکیٹیکچرل ریمینس ہیں، جس میں جہاں پہ ہم ابھی جہاں کھڑے ہیں یہ سما کلسٹر کہلاتا ہے، جس میں سما ادوار کے اس وقت کے جو حکمران تھے، ان کے جو شاہی سپہ سالار تھے، ان کی قبریں ہیں، اور باقی کافی سارے ان کے جو اور شہید ہیں ان کی یہاں پہ قبریں ہیں۔ تو یہ تاریخی حساب سے یہ سب سے ارلی پیریڈ ہے۔ سب سے پہلے سما نے یہاں پہ اپنی ساموئی نام سے تخت گاہ قائم کی تھی، اور تقریباً کوئی 200 سالہ حکمرانی ہے یہاں پہ سما کی۔ اس کے بعد پھر ارگونس آئے جو انویڈرز تھے، اس کے بعد ترخانس آئے، پھر فائنلی جو مغلس آئے۔ تو ان 4 ادوار کے ہمیں یہاں پہ ریمینس ملتے ہیں اس مکلی کے۔ اس حساب سے یہاں پہ ایک تو صوفی درویش بھی ہیں، یہاں پہ بادشاہ بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، پرنسز بھی ہیں، ان کی بھی یہاں پہ مزارات ہیں۔ تو ایک حساب سے ایک پوری ایک تسلسل ہے، اپنا ایک تہذیب کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں سندھ کے سما حکمران جام نظام الدین کے مقبرے میں، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقبرے کی طرز تعمیر کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ ان ڈیزائنز کو دیکھیں گے۔ سن 1461 سے 1509 تک سندھ پر راج کرنے والے سما دور کے آخری حکمران جام نظام الدین دوم تھے، جن کا مقبرہ خوبصورت فن تعمیر کے باعث شاندار ماضی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جام نظام الدین سندھ کے آخری مقامی حکمران تھے جن کے دور حکومت میں یہاں خوشحالی پرواں چڑھی۔ اس وقت کے سنگ تراشوں نے مقبرے پر لگے پتھر کو مہارت سے تراش کر مختلف ڈیزائن بنائے ہیں۔ مقبرے کی چھت دائرہ نما اور کھلی ہے، تاہم مقبرے کے اوپر والے حصے تک پہنچنے کے لیے مقبرے میں خفیہ سیڑھیاں اور دریچے تعمیر کیے گئے ہیں۔ پتھروں سے تعمیر شدہ اس مقبرے کو دیکھ کر اس وقت کے کاریگروں کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جو مقبرے کی کیا اہمیت ہے اور یہاں پر کون کون جو ہے ان قبروں میں مدفون ہے؟ یہ جس مقبرے میں ہم کھڑے ہیں یہ جام نظام الدین کا مقبرہ ہے۔ جام نظام الدین نے سندھ کے اوپر 48 سال حکمرانی کی ہے، جو کہ
उन लोगों ने इनके ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाए हैं। जहां निजामुद्दीन के मकबरे के करीब उनके सपा सालार और बहादुर जंगजू दूल्हा दरिया खान का मकबरा है, जो सन 1521 में गैर मुल्की काबदीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। मकली के कब्रिस्तान में तामीर शुदा जान बाबा के बेटे ईसा खान तुरखान दोम का मकबरा है। मुगल शहनशाह शाहजहां ने सन 1602 में मिर्जा गाजी बेग की वफात के बाद ईसा खान तुरखान को अपना गवर्नर मुकर्रर किया था, जो सन 1640 में 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनका 2 मंजिला मकबरा उस वक्त के फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जा ईसा खान के मकबरे पर, जो अपने दौर के फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। इस मकबरे की खास बात यह है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर इस किस्म के 84 पिलर्स पर खड़ा है। ये मकबरा शानदार आर्किटेक्चर के बायस नुमाया मकाम रखता है, जहाँ कब्रों के कदमों और मकबरे पर जगह जगह पत्थर को तराश कर कुरानी आयात तहरीर की गई हैं, जो उस वक्त की खताती का बेहतरीन नमूना है। मकबरे के दीवारों को कुंद कर मुख्तलिफ नक्श, गुलकारी और डिजाइन बनाए गए हैं, जिसे देखकर उस वक्त के संग तराशों की महारत का पता चलता है। खूबसूरती के बायस नुमाया मकबरा दीवान शुरफा खान तुरखान का है, जो ठट्टा के गवर्नर के वजीर थे। दीवान शुरफा खान ने ये शानदार मकबरा अपनी जिंदगी में तामीर कराया, जो सन 1638 में इंतकाल कर गए। ये शाहकार भी अपनी तर्ज तामीर और आर्कियोलॉजी डिजाइन के बायस मुनफरद मकाम रखता है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दीवान शुरफा खान के मकबरे के पास, और हम आपको अंदर लेके चलते हैं। खूबसूरत रंगों, आर्ट वर्क और कुरानी आयात और खताती से सजाए गए इस मकबरे को देखने से माजी के कारीगरों की बेमिसाल महारत और मेहनत का अक्स नुमाया नजर आता है। यूं इस मकबरे की तर्ज तामीर को गुजरात और मुगलिया आर्किटेक्चर का मेलाप भी कहा जा सकता है। मकली के कब्रिस्तान में तामीर शुदा शाहकार माजी की शानदार तहजीब के साथ उस वक्त की सियासी और समाजी तारीख की गवाही देते हैं, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये तारीखी विरसा मौसमी तब्दीली और हालात के बायस बुरी तरह मुतासर हो रहा था। यूनेस्को की हिदायत की रोशनी में सिंध के महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से इसे असली हालत में बहाल किया जा रहा है, ताकि इस बैनुल-अक़वामी विरसे को तबाही से बचाया जा सके। मकली का कब्रिस्तान अपनी तारीखी अहमियत के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है, जहाँ पर ज्यादातर सयाह अपनी फैमिलीज के हमरा हफ्ता और इतवार को बड़ी तादाद में इस तारीखी शाहकार का रुख करते हैं। यहाँ पर आने वाले सयाहों से पूछते हैं कि उनको ये देखकर ये विरसा कैसा लग रहा है। आप ये बताएं कि आप जो है मकली के कब्रिस्तान को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कोई हिस्टोरिक जगह है, और मैं काफ़ी पहले भी बचपन में आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा आई हूँ तो काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई ये सारे आर्किटेक्चर देख के, जो कि वाकई 1 in a million है। और बस ये देख के हो रहा है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ नहीं है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए खोला जाए और इसकी तरह बेहतरी की जाए, ताकि इसके अलावा इट्स वर्थ विजिटिंग और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही इट्स वर्थ वॉचिंग। यहाँ पे मैं देख रहा था काफ़ी डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बने हुए, और हर पैटर्न है ना डिफरेंट तरह का, इसमें रिंग्स बनी हुई है और डिफरेंट आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। जो वहाँ की जो पिछली लेबर थी, ये तकरीबन 1000 तरह के पैटर्न इसमें बने हुए। कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल होते ही सयाहों को बैटरी पर चलने वाली माहौल दोस्त शटल कार में सफर की सहूलत फराहम की गई है, जिसमें सवार होकर सयाह पूरी कब्रिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये बताएं कि आप मकली के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा हमारा विरसा है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं। ये शटल वगैरह फैमिली के साथ हम आए हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने सकाफती विरसे को देख रहे हैं बड़ा करीब से, बड़ा अच्छा लगा। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है ये गाड़ी की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम इजीली बहुत बड़े एरिया को कवर करके और बहुत अच्छे से इसे देख सकते हैं। हमको यही कहेंगे कि मज़ीद फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि हम जैसे लोग यहाँ पे आए और इसको दोबारा रीडिस्कवर कर सके। कब्रिस्तान में मकबरों के सामने और सड़क पर जगह जगह सयाहों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ जुबानों में बोर्ड आविज़ा किए गए हैं। ठट्टा में शाहजहान मस्जिद माजी के फन तामीर का शहकार है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहान ने तामीर कराया था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों के साथ साथ उस वक्त के फन तामीर के बारे में आपको आगाह करेंगे।
ٹھٹا شہر کے مرکز میں موجود شاہجہان مسجد کو جامع مسجد بھی کہا جاتا ہے، جو مغل شہنشاہ شاہجہان نے سن 1644 میں تعمیر کرائی تھی۔ جو مغل بادشاہ نے یہاں کے لوگوں کو مہمان نوازی کے بدلے میں یہ شاہکار تحفہ دیا۔ 3 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والی اس مسجد کو اپنے منفرد آرکیٹیکچر کے باعث آج بھی اہم مقام حاصل ہے۔ یہ مسجد لال اینٹوں اور پتھر سے تعمیر کی گئی ہے، جس کی بنیادیں 15 فٹ گہری ہیں۔ مسجد میں کاشی کا خوبصورت کام کیا گیا ہے، جس میں نیلا رنگ نمایاں اور بے انتہا پرکشش نظر آتا ہے۔ کاشی گرو نے انتہائی خوبصورت انداز اور مہارت سے قرآن پاک کی آیات کی خطاطی کی ہے، جس نے مسجد کی سجاوٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹائلوں پر کاریگروں نے دلکش گلکاری اور مختلف ڈیزائن بنائے ہیں، جس سے اس وقت کے کاریگروں کی آرٹ سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہجہان مسجد کے سپروائزر عرش صاحب سے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ اس مسجد میں 100 گنبد ہیں ٹوٹل، 6 بڑے ہیں، باقی چھوٹے ہیں۔ اس مسجد کی جو ہوا اور روشنی کسی بھی حساب سے اس میں وہ نہیں ہے کہ بھائی ہوا کی کمی ہو یا روشنی کی کسی کونے میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اس مسجد میں 20,000 لوگ ایک ٹائم پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کی رینوویشن ہو رہی ہے، اوپر چھت پہ کام ہوا ہے، اندر بھی جو ٹائلیں ہیں یا جہیں سے ٹائلیں گری ہوئی ہیں وہ سارے بن رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ اچھا ہوگا کام۔ مسجد کا آرکیٹیکچر انتہائی مہارت سے بنایا گیا ہے، جس کے باعث دن کے اوقات کے دوران مسجد کے کسی کونے میں روشنی کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ مسجد کے اندر ہوا کے گزر کو برقرار رکھنے کے لیے چاروں اطراف محراب نما کھڑکیاں بنائی گئی ہیں، جس کے باعث سخت گرمی میں بھی مسجد کا اندرونی حصہ ٹھنڈا اور ہوادار رہتا ہے۔ ادھر آ کے آپ سوچیں، اٹ ٹیکس یو بیک ان ٹائم ایک طرح سے، اور اٹس اے مارول کتنا یہاں پہ سیمیٹرک ساری کنسٹرکشن ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کمبینیشن کیا ہوا ہے برکس کا اور ود کلر بلو۔ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ فار دس سٹی، اینڈ آئی تھنک قومیں جو ہیں وہ اپنی پاسٹ کو، اپنے فیوچر کو زیادہ اچھا ویژن اس وقت تک سمجھ سکتی ہیں جب تک وہ اپنے پاسٹ کو اور بہتر سمجھیں، تو دیٹ ہیلپس دیم موو فارورڈ۔ سو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ کم ہیئر اینڈ وزٹ اٹ، اینڈ جب آئیں تو اس جگہ کا خیال بھی رکھیں۔ ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ یہ اینڈ پاس میں جو مکلی کا گریو یارڈ اینڈ ایوری تھنگ، تو کافی ہمارے لیے اوبیسلی فخر کا مقام ہے یہ۔ اور اس کی جو خاص بات وہ یہ ہے، جو بچپن سے میں کئی بار یہاں پہ آیا ہوں، ہر دفعہ میں نے ایک کوشش ضرور کی ہے کہ گنبد، جو جتنے گنبد بنے ہوئے ہیں ان کو میں کاؤنٹ کروں۔ باہر لکھا ہوا 100، لیکن آج تک میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکا ہوں۔ کبھی 97 ہوتے ہیں، کبھی 98 ہوتے ہیں، کبھی 99 ہوتے ہیں، کبھی جو 101 ہوتے ہیں۔ 100 پورے جو ہے نہ مجھے نہ میرے دوستوں کو جو ہے وہ یہ مل سکیں 100۔ شاید اس کا اس میں کوئی پرسرار بات اس میں ضرور ہے۔ آئی ایم ریئلی بہت خوش ہے، بچے بھی بہت خوش ہے، فیملی پوری آئی ہوئی ہے، اور یقین کریں کہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ سب چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جائیں، ہم ترکی جائیں، استنبول جائیں، سری لنکا جائیں۔ ہمارے اپنے ملک میں اتنے مواقع ہیں، ہمارے ملک میں اتنی جگہیں ہیں، ایسی جگہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا سمجھ لیں کہ ہمارے پاس انعام ہے الحمدللہ ہیریٹیج کے ساتھ۔ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے، اگر ان چیزوں کو موجودہ شکل میں بحال رکھا جائے تو ہمارے سندھ میں چند ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بحال رکھ کے اپنے شناخت میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے، اور ٹھٹھے ضلع کی ایک بہت معروف لیک کے ساتھ میں ہے، کراچی سے بہت نزدیک ہے، اچھی اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں کے۔ مسجد کا پورا ڈھانچہ 94 کھمبوں پر کھڑا ہے، اور ہر پلر کی چوڑائی 6 فٹ ہے۔ کراچی کے قریب قدیم تاریخی مقام بمبور ہے، جہاں سے قبل از مسیح سے 1300 صدی تک کے آثار ملتے ہیں۔ اس مقام کو ماضی میں بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں پر قلعے کے آثار موجود ہیں، جہاں قلعے کے ایک حصے میں شاندار مسجد جبکہ دوسرے حصے میں مندر کے آثار محفوظ ہیں۔ سسی پلوں کی محبت کا رومانوی داستان بھی اس قدیم شہر سے جڑا ہوا ہے، جو آج بھی بمبور کی پہچان ہے۔ یہ وہی بندرگاہ ہے جہاں سے عرب سپہ سالار محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے، جس کے باعث سندھ کو
बाबुल इस्लाम कहा जाता है। इस कदीम तारीखी मकाम से मिलने वाले आसारों को महफूज करने के लिए म्यूजियम भी मौजूद है। म्यूजियम में मिट्टी, शीशे और दीगर अशिया से बने हुए बर्तन, छुरियां और आम इस्तेमाल की अशिया रखी गई है, जिनको देखकर कदीम दौर के कारीगरों की महारत और तर्ज जिंदगी का पता चलता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तारीखी मकाम बम्भोर के म्यूजियम में। इस तारीखी मकाम की अहमियत के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं महकमा सकाफत के ज़हीर साहब। उनसे पूछेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। ज़हीर साहब, ये बताएं कि बम्भोर की क्या अहमियत है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? सर, बम्भोर 2100 साल पुराना शहर है। कबले मसीह से ये आबाद था। यहाँ 1958 में पहली एक्सकवेशन जो डिगिंग हुई है 1958 में हुई है। एक्सकवेशन के दौरान जो पीरियड मिले हैं, सबसे पहला पीरियड जो हमें मिला है वो सीथू पाथिन कबले मसीह का पीरियड है। उसके बाद सासानियन पीरियड मिला है। उसके बाद हिंदू बर्मन पीरियड राजा दाहिर का दौर है। और लास्ट पीरियड यहाँ पे जो हमको मिला है अब्बासी पीरियड है। तो ये बम्भोर शहर एक तो इस वजह से भी मशहूर है कि राजा दाहिर का ये किला था और ये एक इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेस है। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके ऊपर हमला किया 712 में। सिंध को जो बाबुल इस्लाम कहा जाता है वो मेन एंट्रेंस ये है। दीवल की बंदरगाह भी इसी को कहते हैं। 13वीं सदी के बाद जैसे दरियाई सिंध का अपना यहाँ से रुख चेंज हो गया तो ये शहर वीरान हो गया और आस्ता आस्ता खंडार में तब्दील हो गया। तो एक्सकवेशन के दौरान जो हमको जो चीज़ें मिलती गई हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी हैं, जिसमें पॉटरी है, आयरन है, आइवरी है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले करके रखा हुआ है। बम्भोर पर सयाहों की सहूलत और तफरीह के लिए हट्स, रेस्ट हाउस और कैंटीन भी बनाई गई है, जिसके बाद सयाह दिन और रात की औकात में भी इस तारीखी मकाम का रुख करते हैं। नाज़रीन, बम्भोर हमारा तारीखी मकाम है जहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह आते हैं और अपने इस तारीखी विरसे को देखकर न सिर्फ अपने आप पर और अपने तारीखी विरसे पर फख्र करते हैं, मगर यहाँ आकर भरपूर तफरीह भी हासिल करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बम्भोर एंशिएंट सिटी है सिंध की। बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है जो सिंध के लोगों से एसोसिएटेड है, मुसलमानों से एसोसिएटेड है। रिगार्डिंग मोहम्मद बिन कासिम और ससी पुन्नू की भी स्टोरी भी है कुछ मोहम्मद बिन कासिम से पहले की। और ये म्यूज़ियम है जो बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है हमारी एंशिएंट। बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। बहुत मज़ा आया। बहुत काफ़ी अच्छा सेटअप है। पीछे कैंटीन भी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग आएँ, पूरे सारे लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आएँ। हमने यहाँ पे विज़िट किया और हमने एक हिस्टोरिकल जो पुरानी चीज़ें देखी जो पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा पुराने वक्तों में जो इस्तेमाल शुदा अशिया थी, उसके अलावा बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स थी जो यूज़ की जाती थी। उसके अलावा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और व्यू भी बहुत अच्छा है। एज अ फोटोग्राफिकल वे में ये बहुत अच्छी जगह है। और दूसरा पीस है। आउट ऑफ सिटी है थोड़ा, लेकिन बहुत पीस है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो सच कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन आज मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि रेस्टोरेंट बन गया, बाथरूम बहुत अच्छे साफ सुथरे मेंटेन रखा हुआ और जो हमारी तारीखी चीजें उनको बड़ा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। बम्भोर की तरफ जाने वाला रास्ता सयाहों के लिए इंतहाई महफूज है, जो वक्त के साथ एक बेहतरीन तफरीह मकाम में बदल रहा है। नाजरीन, कुदरती हुस्न से मालामाल कींझर झील से जुड़ा हुआ है सिंध के समा हुक्मरान जाम तमाची और माहीगीर खातून नूरी की मोहब्बत का रोमानवी दास्तान। यूं ये झील अपने कुदरती हुस्न और खूबसूरत मनाजिर के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। ठट्टा के करीब मीठे पानी की झील कींझर झील मौजूद है, जो अपने कुदरती हुस्न और दिलकश नजारों के बायस अहम सियाहती मकाम का दर्जा रखती है। इस झील से एक माहीगीर औरत के साथ माजी के समा हुक्मरान जाम तमाची के इश्क का दास्तान जुड़ा हुआ है। हमारे पास साथ मौजूद हैं यहाँ के माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता इस्माइल। उससे हम पूछते हैं कि जाम तमाची और नूरी की मोहब्बत का जो रोमानवी दास्तान है वो किस तरह जुड़ा। वो एक हमारा मछुआरा था, उसको खाना वाना देता था। उसकी ऐसी हालत थी बीमारी में जो उसको कह नहीं सकता हूँ। उसको फिर
ऐसा बड़ी हो गई, उसका अल्लाह पाक ने ऐसा हुस्न कर दिया जो एक दिन जाम तमाची आ गए, शिकार के आ गए तो उसका हुस्न देखा, हुस्न देखा तो इश्क हो गया उसको। उसने बोला मछुआरे को, तो भाई मुझे इसका संग दे दो। उसने बोला भाई मैं नहीं दूंगा, कि नहीं मुझे दे दो। तो इसने दे दिया जी, किस लिए नहीं दे रहे हो, कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए। कि क्या चाहिए जी, मुझे कलरी झील चाहिए। तो उस कलरी झील को उसको लिख के दिया, उसने संग दे दिया उसको। किंजर झील के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए हफ्ता और इतवार को बड़ी तादाद में सयाह अपनी फैमिलीज के साथ इस सयाहती मकाम का रुख करते हैं। फैमिली माहौल है और नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें की एक्टिविटीज अच्छी होती हैं। सिक्योरिटी वाइज सबसे अच्छा है, फैमिली के साथ बंदा एक्सपेंड कर सकता है टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एजुकेशन कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसकी वजह से बंदा डिस्टर्ब हो, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। किंजर की जो ये रिजॉर्ट है और ये एसटीडीसी की एक बहुत बड़ी काबिश है, तो ये फैमिली के लिहाज से और अपना टूर के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। एक तो यहाँ साफ सुथरा है, ये अच्छे रिजॉर्ट हैं, सेफ जगह है। पहले की बनस्बत ये अभी काफ़ी बेहतरी है, यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं अपने सारे मुल्क के अवाम को चाहता हूँ कि अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे आएँ, देखें और तफरीह लें, मज़े लें। सबसे बेहतरीन जगह यहाँ है कि यहाँ का एनवायरनमेंट देखो ना, पीपल फ्रेंडली लोग हैं, यहाँ लोग अच्छे हैं, लोगों की तबीयत अच्छी है, यहाँ सिक्योर फील करेंगे बनस्बत दूसरी जगहों के। मैं ये कहूँगा कि यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को पहले यहाँ डेवलपमेंट करनी चाहिए। किंजर झील पर सयाहों की सहूलत के लिए खूबसूरत और आरामदाह हट्स तामीर किए गए हैं जो तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हालेजी झील का सैर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, ये है वो हालेजी झील जिसको अंग्रेज़ राज के दौरान तैयार किया गया, क्योंकि इस झील से ही जो कराची में मौजूद सिपाही थे उनको यहाँ से पानी फराहम किया जाता था। सारा साल इसमें जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो परवान चढ़ती है और ये जो है सयाहत के लिए और जो है अपना तफरीह के लिए एक बहुत अच्छा मकाम है और कराची से भी काफ़ी नज़दीक है। तो जो लोग यहाँ पर आना चाहें, इसका विज़िट करना चाहें, बहुत ही अच्छा माहौल है। नेशनल हाईवे पर गुज्जों के करीब हालेजी झील कुदरती हुस्न, खूबसूरत मनाजिर और कुदरती माहौल के बायस एक मुनफरद तफरीह मकाम है। ये झील परदेसी परिंदों के लिए महफूज मकाम के बायस इसे रामसर साइट का हिस्सा करार दिया गया है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में मौसम सरमा में परदेसी परिंदे वक्ती कयाम के लिए इस झील का रुख करते हैं। यूँ ये झील परिंदों को देखने और फितरत से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन माहौल फराहम करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस झील में मगरमच्छ पाए जाते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगली हयात की जानिब से मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। झील के अहाते में सयाहों की सहूलत के लिए महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से आलीशान हट्स तामीर किए गए हैं, जहाँ सयाहों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। target